नमस्कारम। आज का मीटिंग जो है हमारा कैंसर अवेयरनेस कैंपेन फेज 2 2021 इसके बारे में इसमें अगर स्पीकर हैं तो हमको कैसे प्रेजेंट करना है इस बारे में हम ये जो मीटिंग है उसको ले रहे हैं और उसमें मैं पूरा प्रेजेंटेशन आपको बतलाऊंगा। शायद उसमें मेरा फेस नहीं आएगा लेकिन स्क्रीन शेयरिंग का यूज करके मैं आपको सारा प्रेजेंटेशन एक्सप्लेन करूंगा और ये मीटिंग यूट्यूब पे भी अपलोड हो जाएगा ताकि अगर आपको कुछ रिवाइज करना है, पॉइंट्स देखना है, लिखना है, वो सब आप कर सकते हो। उसके अलावा अपने कैंसर अवेयरनेस कैंपेन का जो वॉलंटियर्स का ग्रुप है 2020 वालों का, उसके ऊपर भी मैं ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा प्रेजेंटेशन का, सो दैट आप उसको देख सकते हो, समझ सकते हो। तो मैं स्क्रीन शेयरिंग स्टार्ट करता हूँ। ओके अच्छा, इसमें मेरे को होस्ट बनना पड़ेगा। ओके, so this is about Karkarog Jagrukta Abhiyan 2021 that we had started in the month of February, from February 4 to 2021 to actually 11th of March 2021. But because of COVID restrictions and restriction for gatherings, we had to stop it at around 25 of February 2021. And within these 25 days, we reached more than 1,000 people live in 20 different locations, and rural and urban distribution was done. And the whole synopsis or the review of the complete campaign is already there on the YouTube in a video. So the main intention is about cancer awareness, and the main causes of cancer, as we know, most of the times they are the addictions, yeah, व्यसन. And that is why this cancer awareness campaign, we had the hashtags of Arogya Bhishaj, which is the main health related project of Karmayogi Samstha, and all the related researches, videos, presentations, campaigns, they all come under this Arogya Bhishaj program. And व्यसन मुक्त भारत, जाहिर व्यसन मुक्ति अभियान, and अपना स्वास्थ्य अपनी जवाबदारी, means our health, our responsibility. These were the hashtags that we wanted to highlight in this campaign. Now, why the date 4th February was chosen? It was so because it is the World Cancer Day, and WHO, which is under the UN, that is United Nations, had declared it some time back to celebrate 4th February as the Cancer Awareness Day, World Cancer Day, in order to aware people and masses regarding cancer because of the rising number of cancer patients. And we were celebrating it till 11th March because 11th March is the birth anniversary of the lady who dedicated all her life for cancer patients. Till the age of 93, she had been working, and she is the main inspirer for us. Padma Shri, Padma Bhushan, Padma Vibhushan, Dr. V. Shanta ma'am, who was the chairman of Cancer Institute of Chennai. A couple of months back, she passed away, but all her life she dedicated, and in her honor, we had celebrated this month from 4th of February to 11th of March. And this would be the annual event of the Arogya Bhishaj program of Karmayogi Samstha every year. The main tagline is start quitting, start repairing. The reason is that the moment we quit our addiction, it starts the repair. That is, it stops the further damage, and that itself is a repair. If you can see the encircled pictures, you will understand that on the extreme left, where there is a soft-edged rectangle in which a skeleton is smoking is shown, और वो skeleton के skull में से धुआं निकल रहा है। तो कहने का ये मतलब है कि सिगरेट पीते पीते उसका कंगाल हो गया, लेकिन उसकी आदत नहीं गई. He has become a skeleton. It means what? He has destroyed all his body because of the addiction of smoking. Yet he is smoking. This is the condition of addiction. Second photo is the photograph of cigarettes.
Third is about the oral cancer, shows about the lip cancer. And the fourth photo, which is quite interesting, which I find, it shows that the cigarette is hung. It is hung like a hanging, like a person hanging. और वो सिगरेट में से जो धुआं निकल रहा है, एज यू कैन सी हियर, वो जो धुआं निकल रहा है दैट इज इन द शेप ऑफ द डीएनए, और वो डीएनए को ऊपर स्कल है, मुंह है, तो वो धुआं ही वो व्यक्ति को खा रहा है. वो जो सिगरेट है दैट डिपिक्ट्स द पर्सन, और उसमें से जो धुआं निकल रहा है वो व्यक्ति को मार रहा है. इट इज लाइक ए सुसाइड, लाइक हैंगिंग, एंड दिस इज द मैसेज दैट वी आर गिविंग फ्रॉम दिस फोटो. It carries a deep meaning that the smoke from this cigarette is killing the person, which is equivalent to committing suicide by hanging. The next photograph, what you can see, is our inspiration, as I have already mentioned, is about Padma Shri, Padma Bhushan, Padma Vibhushan. Late Dr. V. Shanta ma'am was the former chairman of Cancer Institute Adyar, Chennai. We had an opportunity, and by the grace of God, that we could meet her here in Solapur. She was our guest of honor for the UG conference 2019, and she had been here in Solapur to VM Medical College in the first ever UG con that had happened in the history of 56 years of VM Medical College. The basic motive behind any health related campaign that KY is doing is this. This was a 6-liner that we had formed during the conference, but this is the one which we only have formed, and that is why we are using it. It is where there is integration of concepts, there is key to the door of intelligence. जो हम सीख रहे हैं सारे सब्जेक्ट्स, उसका जब इंटीग्रेशन होता है सारे कंसेप्ट्स का, तो उसमें से कोई राजमार्ग, उसी में से कोई महामार्ग, उसी में से कोई लेआउट, फाइनल गाइडलाइन तैयार होता है. दैट इज द की टू द डोर ऑफ इंटेलिजेंस. And where there is key to the door of intelligence, there is application of knowledge. अगर आपके पास पूरा लेआउट रेडी है, जैसे हमारे पास ये पूरा प्रेजेंटेशन रेडी है, जो हमने बहुत रिसर्च करके सारे जो एस्पेक्ट्स हैं, फाइनेंशियल एस्पेक्ट है, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट है, मतलब वही हेल्थ रिलेटेड एस्पेक्ट है, सोशल एस्पेक्ट है, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है, एडिक्शन का, डी एडिक्शन का, कैंसर का, उसके अवेयरनेस का, ये जो सारे मुद्दे, इनको जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमको ये एक कंप्लीट प्रेजेंटेशन मिला है. और जब हमको वो कंप्लीट प्रेजेंटेशन मिलता है, दैट इज द डोर टुवर्ड्स इंटेलिजेंस. देयर इज एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, जो मैं आपको अभी बता रहा हूं, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज. जब ये नॉलेज को हम ट्रीटमेंट में यूज करते हैं, व्हेन देयर इज एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, देयर इज सिंक्रोनी इन द ट्रीटमेंट. कि पेशेंट को खाली दवाई देके ठीक कर दिया, ऐसा नहीं है. पहला स्टेप है उसकी आदतों से हम उसको ठीक करते हैं. दूसरा है हम उसको कुछ ऑल्टरनेटिव देकर के ठीक करते हैं. तीसरा है हम उसको इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल ये प्रॉब्लम्स बता करके उसको बताने की कोशिश करते हैं. चौथा है उसको सोशल बिहेवियर, सोसाइटी में कैसा है, फैमिली में कैसा है, उसको संबंधों में लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं, इस बारे में बतला करके उसमें चेंज लाने की कोशिश करते हैं. और ये सब होने के बाद में भी प्रिवेंशन से जब वो नहीं मानता है और जब उसको नुकसान होता है, तब उसको हम स्टेप बाय स्टेप ट्रीटमेंट दे करके, अर्ली डिटेक्शन कर करके उसको हम मनाने की कोशिश करते हैं. और ऐसा सिंक्रनी जब ट्रीटमेंट में, और जब वो अर्ली डिटेक्शन होने के बावजूद अगर ठीक नहीं होता है तो उसको हायर ट्रीटमेंट, कीमोथेरेपी वगैरह होता है. वो होने के बाद में भी अगर ठीक नहीं होता है तो पॉसिबली अगर सर्जरी हो सकता है तो सर्जरी करते हैं. सर्जरी से भी नहीं ठीक होता है तो पैलिएटिव ट्रीटमेंट देते हैं. और पैलिएटिव ट्रीटमेंट से भी कुछ नहीं होता है तो उसका राम नाम सत्य होता है. इस प्रकार से सिंक्रनी इन ट्रीटमेंट कब होता है? जब एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज है. ये कब हो रहा है? जब सारे कॉन्सेप्ट का इंटीग्रेशन करके हम एक कॉमन लेआउट इंटेलिजेंस बना रहे हैं. उसको जब हम अप्लाई करते हैं, लोगों को बताते हैं, अवेयरनेस करते हैं, ट्रीटमेंट में यूज करते हैं, देन देयर इज सिंक्रनी इन द ट्रीटमेंट. व्हेन देयर इज सिंक्रनी इन द ट्रीटमेंट, देयर इज फिटनेस ऑफ द पेशेंट. व्हेन देयर इज फिटनेस ऑफ द पेशेंट, देयर इज वेलबींग इन द सोसाइटी. व्हेन देयर इज वेलबींग इन द सोसाइटी, देयर इज प्रोग्रेस ऑफ द नेशन. ऐसा ये हमारा उद्देश्य मेन है कि हम सोसाइटी का भला करें, समाज का कल्याण करें और स्वर्णिम भारत के निर्माण के लिए अपना योगदान इस प्रकार से दे, प्रोग्रेस ऑफ द नेशन के. So, coming to our topic, what is cancer? Now, talking about the definition of textbook which is written below. But before that, I would like to talk what common man thinks or how we can explain the common man regarding cancer.
Cancer is basically a form of life that happens due to growth aberration. This growth aberration arises from a single cell monoclonal cell, which you will learn in histology, which you can learn in genetics, which you can learn in pathology. It is basically a biological phenomenon which is coming from within. कैंसर कोई बाहर से तो आ नहीं रहा है जैसे इन्फेक्शन आता है. हाँ, कैंसर कॉजिंग एजेंट व्हाट वी कॉल एज कार्सिनोजेनिक एजेंट्स वो बाहर से आते हैं और उसकी वजह से हमारे शरीर में कैंसर होता है. लेकिन कैंसर हमारे खुद के सेल से ही हो रहा है और इसीलिए उसको बोला गया है कैंसर अ ट्रेटर विद इन. ट्रेटर मतलब इसके लिए एक फेमस डायलॉग है जो रामायण में से लिया हुआ है, जो रावण ने विभीषण के लिए बोला है, घर का बेदी लंका जलाए. तो वो घर का बेदी लंका जलाए वो अच्छे एस्पेक्ट में है कि वो अधर्म की बाजू छोड़ करके विभीषण धर्म की बाजू में जाते हैं और लंका का नाश होता है. लेकिन यहां पर कैंसर अ ट्रेटर विद इन ये अलग सीन में है. अलग सीन में क्या है, हमारे अंदर का सेल ही हमको घातक ठहरता है, हमारे को नुकसान करता है. बेसिकली कैंसर इज नॉट ए सिंगल डिजीज एज मेंशन्ड, इट इज अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ कंडीशंस and the range of its curability and aggression it varies very much. और ये हम डिस्कशन जब प्रेजेंटेशन का आगे आगे करेंगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा. और कैंसर इज ऑल्सो रेफर्ड एज नियोप्लाजिया. ये कैंसर ये पैथोलॉजी के रॉबिन्स के टेक्स्ट बुक का डेफिनेशन है कि कैंसर को हम नियोप्लाजिया भी बोलते हैं पैथोलॉजी के मेडिसिन के लैंग्वेज में. और उसका टेक्स्ट बुक डेफिनेशन एज मेंशन्ड है कि अ न्यू ग्रोथ कंप्राइजिंग ऑफ एबनॉर्मल कलेक्शन ऑफ सेल्स the growth of which is uncoordinated and exceeds that of normal tissue. मतलब क्या, आजू बाजू के जो सेल्स हैं उसके कंपैरिजन में ये कैंसर वाले सेल्स का ग्रोथ ज्यादा है, उसके आजू बाजू के सेल्स से कंपेयर करते हैं तो उसका ग्रोथ अनकोऑर्डिनेटेड है और इसकी वजह से हम देखते हैं कि उसका साइज बढ़ जाता है और वो ऑब्स्ट्रक्शन जैसे काम करता है. और ये उन्हीं सेल्स में कैंसर होता है जिस सेल्स का एक्सपोजर कार्सिनोजेनिक जो एलिमेंट्स है, कार्सिनोजेनिक सब्सटेंसेस है, इसका और जो हमारे सेल्स है उसका अगर संपर्क आता है उन्हीं सेल्स में कैंसर होता है. बाद में अगर मैलिग्नेंट होकर के वो सब जगह फैलता है तो अलग बात है, वाया ब्लड, वाया लिम्फेटिक सिस्टम और डायरेक्टली फ्रॉम वन ऑर्गन टू अदर, फ्रॉम वन कैविटी टू अदर, ये अलग बात है. लेकिन अदरवाइज जो हमारे शरीर का भाग, जो एपिथेलियल लाइनिंग वो कार्सिनोजेनिक एजेंट के संपर्क में आती है, उसी का कैंसर शुरू होता है. एंड इसीलिए जो अंदर से शुरू हो रहा है वो कैंसर है, इसीलिए उसको हम कैंसर अ ट्रेटर विद इन ऐसा बोला गया. प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? देखो, कभी भी इसमें कॉजेज नहीं होते क्योंकि ये सब जो फैक्टर्स है इसका पीएसएम में एसोसिएशन बनाते हैं. मतलब क्या, 10 अगर लंग कैंसर के पेशेंट हमने स्क्रीन किए तो उसमें से अगर 7 या 8 लोगों को टोबैको का हिस्ट्री है, स्मोकिंग का हिस्ट्री है, सॉरी लंग कैंसर है तो स्मोकिंग का अगर हिस्ट्री है 8 लोगों को, इसका मतलब उसका परसेंटेज 80% एसोसिएशन है, ऐसा हम ग्रॉसली बोल सकते हैं. लेकिन उसको कैलकुलेट करने का एक ऑड्स रेशियो होता है जो आप पीएसएम में सीखोगे. उसके बहुत बहुत कैलकुलेशन के स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला वगैरह हैं, उसकी डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूं. लेकिन इसको हम डायरेक्टली कॉजेस नहीं बोलते हैं, प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स बोलते हैं, क्योंकि उसमें हम उन दोनों, उस फैक्टर का और डिजीज का, कैंसर का, उसका एसोसिएशन डेवलप करते हैं या एसोसिएशन के लिए चेक करते हैं. क्योंकि ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं जो शायद स्मोकिंग नहीं करते फिर भी उनको लंग कैंसर होता है अलग अलग कारणों की वजह से, और इसलिए उनको हम फैक्टर्स एसोसिएटिंग ऐसा बोलते हैं या प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स बोलते हैं. उसमें अभी 5 प्रमुख फैक्टर हमको दिखते हैं. एक जो आपको दिख रहा है फैमिलियल जेनेटिक, दूसरा रेशियल जियोग्राफिक, तीसरा एनवायरमेंटल, चौथा एज, पांचवा सेक्स. जो पहला फैमिलियर और जेनेटिक है उसका एक सुप्रसिद्ध एग्जाम्पल ऐसा है कि वेस्टर्न कंट्रीज में कार्सिनोमा कोलॉन ये बहुत कॉमन है. अब कार्सिनोमा कोलॉन होने की वजह से क्या होता है, उनके पीढ़ियों में ये चलते रहता है. बाप दादा को हुआ, बाप को हो गया, उसके बेटे को हो गया, उसके बेटे को हो गया. तो ये एक जनरेशन में से, एक फैमिली में से हेरिडेटरी होते रहता है और उसको हम फैमिलियल या जेनेटिक बोलते हैं बिकॉज ऑफ जेनेटिक ट्रांसमिशन. दूसरा है रेशियल और जियोग्राफिक. इसका बहुत एक सुप्रसिद्ध उदाहरण है, जैसे वेस्टर्न कंट्री के लोग गोरे होते हैं क्योंकि उनमें मेलानिन पिगमेंट कम होता है या नहीं होता है. लेकिन इंडियन जो पब्लिक है या ईस्टर्न कंट्रीज का जो पॉपुलेशन है, उनका जो चमड़ी का कलर है, स्किन का जो उनका कलर है, दैट इज ब्लैक इनफ बिकॉज ऑफ मेलानिन पिगमेंट विच इज इन सफिशिएंट क्वांटिटीज.
सो इफ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड ये जो रेशियल या ज्योग्राफिक है, तो देखो रेस माने क्या, कलर के ऊपर से जो डिफरेंशिएशन किया जाता है ब्लैक एंड व्हाइट। ज्योग्राफी मतलब क्या, वेस्टर्न वर्ल्ड ईस्टर्न वर्ल्ड। तो ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, जो गोरे हैं व्हाइट पीपल, उसमें सनलाइट का एक्सपोजर होने की वजह से यूवी लाइट, उसमें यूवी जो रेज है सनलाइट के, उसका एक्सपोजर होने की वजह से ईस्टर्न कंट्रीज के व्हाइट पॉपुलेशन में स्किन कैंसर होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि यूवी रेज वन ऑफ द प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स फॉर स्किन कैंसर। लेकिन वही वेस्टर्न कंट्रीज में जियोग्राफिकली ब्लैक पीपल में रेसिज्म के बेसिस पे वो कैंसर कम है, क्योंकि यहाँ पे मिलानिन पिगमेंट ज्यादा है। ये उसका एग्जाम्पल होगा। तीसरा एनवायरमेंटल, जिसका लंबा चौड़ा लिस्ट आप देख सकते हो। सिगरेट स्मोकिंग से वो धुआं बाहर जाता है आधा, और आधा अंदर जाता है। तो अंदर डायरेक्ट लंग में नहीं जाता है ना, सारे रेस्पिरेटरी ट्रैक से जाता है। अच्छा, वो एलिमेंट्री कैनाल में भी जाता है, और इसलिए एरो डाइजेस्टिव, एरो मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक, डाइजेस्टिव मतलब एलिमेंट्री कैनाल, ये सारे जो भी ऑर्गन्स हैं जो उसके धुएं के एक्सपोजर में आते हैं, वो सब का कैंसर होने की पूरी पूरी शक्यता है। उसमें सबसे ज्यादा कॉमन ये है कि वो लंग का कैंसर होए, रेस्पिरेटरी पाथवे का कैंसर होए। दूसरा अल्कोहल अब्यूज है, तो दारू भी मुंह से पीते हैं, और इसलिए कैंसर ऑफ ओरोफेरिंग्स, कैंसर ऑफ लैरिंग्स, इसोफेगस, लिवर, स्टमक, ये सब हो सकता है। अल्कोहल प्लस टोबैको, आप सोच रहे होंगे ये कैसा है। देखो, जो स्मोकिंग करते हैं वो स्मोकिंग के बीड़ी में या सिगरेट में भी टोबैको को ही पेपर में रोल करके देते हैं, और इसलिए अल्कोहल और टोबैको की अगर हम बात करते हैं, तो आपने मूवी का एक सीन देखा होगा जिसमें ये जो हीरो होता है वो दारू पीते पीते क्या करता है, स्मोकिंग करता है, और स्मोकिंग करके उसका जो ऐश होता है, जो राख होती है सिगरेट की, उसको दारू की जो बॉटल है या ग्लास है उसमें छिड़कता है। He sprinkles that ash of cigarette into the alcohol and then he drinks it. And this is very, very hazardous when he is drinking alcohol and smoking all together. And that is why alcohol plus tobacco possesses a far more, many times higher risk as compared to the individual risk factors or predisposing factors. पान या सुपारी, ये हमारे यहाँ पे लोगों को आदत है, कुछ नहीं होता है, पान तो मुंह में चाहिए, सुपारी बिना तो हमारी दिन ही खत्म नहीं होता है। This is all nonsense. There is no need, because there is no purpose of eating them. And when there is no purpose, it is useless. And if it is useless, we must remove it. Diet rich in fat, low in fiber. ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट है, कुछ लोग मानते नहीं है, जो नहीं मानते वो सफर करते हैं। देखो, डाइट रिच इन फैट और लो इन फाइबर, ये नॉन वेजिटेरियन फूड इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। और इसलिए लो फाइबर वाला फूड खाएंगे, रिच इन फैट वाला फूड खाएंगे, तो हमको अल्सरेटिव कोलाइटिस, जो यूसी लिखा हुआ है, क्रोन्स डिसीज, ऐसी सब बीमारियां होने की बहुत शक्यता होती है। एंड दे आर द मेन बैकग्राउंड और द रिस्क फैक्टर्स विच कैन लीड टू कैंसर कोलॉन। और इसका अलग सिस्टम है, पर्पस ऑफ, इसका अलग एक वीडियो है, पर्पस ऑफ फूड, वो आप देख सकते हैं। उसमें इसके बारे में, ये पूरे पॉइंट के बारे में पूरा डिटेल 10-15 मिनट, उसमें 20 मिनट बात की हुई है कि नॉनवेज क्यों खाना है, क्या खाना है, नहीं खाना है। लोग बोलते हैं खाना है, हम बोलते हैं नहीं खाना है। तो क्यों नहीं खाना है, उसका सारा साइंटिफिक स्पिरिचुअल सब रीजन उसमें दिया हुआ है। लेकिन उससे कैंसर होता है, ऐसे बहुत सारी स्टडीज है। अच्छा, रेडिएशन, तो रेडिएशन का एक्सपोजर होता है, उस वजह से भी कैंसर हो सकता है। जैसे हमारे एक्सरेज है, सीटी स्कैन, अननेसेसरी लोग फुल बॉडी चेकअप करते रहते हैं और उससे उनको नुकसान हो सकता है। अच्छा, एज है, तो कुछ कैंसर से एज रिलेटेड है, जैसे बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी, ये बूढ़े लोगों में, बूढ़े मेल्स में होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड का जो बिनाइन हाइपरट्रॉफी, ये कैंसर नहीं है बट हाइपरट्रॉफी। उसके बाद जो यूटेरस में जो क्या बोलते हैं, यूटेराइन मासेस जो होते हैं, मायोमा बनता है, वो यूजुअली पोस्ट मेनोपॉज ऐसा फीमेल्स में देखा जाता है, तो एज रिलेटेड है। उसके बाद में सेक्स रिलेटेड जो यूटेरस का कैंसर है वो मेल में तो हो नहीं सकता। ब्रेस्ट का, मैमरी ग्लैंड का कैंसर है, 99.9% ये फीमेल में होता है, 0.1% मेल में भी देखा गया है। प्रोस्टेट कैंसर अगर होगा तो वो फीमेल में तो हो नहीं सकता। तो ये सब, ओवरी का कैंसर है तो वो मेल में हो नहीं सकता। तो ये सेक्स के बेसिस पे कैंसर का डिवीजन है। अच्छा, अभी ये जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये आप समझिए। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, थोड़ा स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप करता हूँ और व्हाइट बोर्ड शुरू करता हूँ। कॉन्सेप्ट व्हाट आई वाज टेलिंग, सपोज दिस इज ए फ्रूट, सपोज दिस इज ए फ्रूट,
Now, if I want to increase the size of this fruit, then how do I do it? People put up chemicals, right? Farmers will put up chemicals like gibberellic acid, etc. There are so many. I don't want to go in the details. Growth hormones वगैरह सब कुछ रहते हैं. Now, if we see these, as human beings, we have so many parts of the body. Similarly, a plant is also having parts like leaves, stem, fruits, etc. So, as I told you, in living beings, whichever chemical they come in contact with, that will develop cancer, right? Now, what is basically cancer? To understand this, we have taken this example. So, how human beings have their body parts or organs, similarly, plants also have their organs, parts, right? Leaves, fruits, etc. Now, the farmers will sprinkle these chemicals on the fruit only. They will not sprinkle it on the leaves or stem like that. And that is why only the fruit will have the effect of these chemicals. Now, we all are living beings, even plants are. And these are all made up of cells, right? So, if we want to increase the size of this fruit, there can be two ways by which we are doing it. One is increase the size of each cell inside the fruit. The second way is you should increase the number. Suppose if there are 100 cells in this fruit, they can be either 500 here, or the size of each cell has increased, which we call as, when the number increases, it's called as hyperplasia in pathology. When the size increases, it's called as hypertrophy. It is called as hypertrophy. So, what is happening? The part of the plant, that is the fruit, which is getting exposed to the chemical, what is happening? The cell size or the number is increasing, and this is nothing but cancer. As we already saw in the textbook definition or the pathological definition of cancer, which states that there is uncoordinated growth, right? तो इसके जो दूसरे सेल्स हैं भाई बहन कौन है? स्टेम के लीव्स, स्टेम के सेल्स हैं, लीव्स के सेल्स हैं, उनका जो सेल का साइज है या नंबर है वो बढ़ नहीं रहा है, और ये फ्रूट का कंपैरेटिवली ये ज्यादा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है अनकोऑर्डिनेटेडली. एंड एज अ रिजल्ट व्हाट इज हैपनिंग? This is nothing but what we are defining as cancer. Now what happens is that, देखो उसके अंदर का जो कंटेंट है ना, कंटेंट वो तो उतना ही है, जो मिठास है वो उतनी है, और इसलिए ये जो हाइब्रिड फ्रूट्स है, दिस इज वन टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, राइट? हाइब्रिडाइजेशन हैपेंस एट टू डिफरेंट लेवल्स. वन इज जेनेटिक, मतलब जो हम जीएम ब्रिंजल, जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन, जेनेटिकली मॉडिफाइड ब्रिंजल, ये सब यूज करते हैं. तो जेनेटिक लेवल पे उसको कीड़ा ना लगे, उसका अच्छा यील्ड हो, उसके लिए हम क्या करते हैं? उसको जेनेटिक मॉडिफिकेशन करते हैं. लेकिन ये ऊपर से पकाए हुए केमिकल डाल के किए हुए, एंड दिस काइंड ऑफ हाइब्रिड, तो इसीलिए हमको ये फ्रूट्स कैसे लगते हैं? फीके लगते हैं, क्योंकि उसके अंदर का उसका जो क्वालिटी है, उसका जो जो कंटेंट है वो उतना ही है, बस उसका साइज या नंबर बढ़ गया. और इसलिए ये हाइब्रिड फ्रूट्स को हमको टालना चाहिए, क्योंकि ये फ्रूट के अंदर के सेल्स के ऊपर एक्शन करने के बाद ये कोई केमिकल खत्म नहीं हो जाता है, गायब नहीं हो जाता है, और इसलिए क्या हो सकता है? उसकी वजह से दैट कैन एंटर आवर बॉडी इन लो डोजेस, and over a period of time we may develop some or the other type of cancer of the alimentary canal because of consuming these or hybrid fruits. Now people will say सब मार्केट में हाइब्रिड ही है, तो आपके आंगन में आप आम का झाड़ लगाओ, आप हमारा केवाई का होम एग्रीकल्चर का भी ग्रुप है, आप टेरेस फार्मिंग भी कर सकते हैं. तो ऐसा सब है. There are solutions to everything, every problem that we have if we are willing to really do. So coming back to the presentation, as I was telling you all about this concept of fruit. So if you see that, as I already explained you, that it is either the increase in number or the increase in the size of the cells, and mechanism is applicable in every living entity. जैसे फ्रूट में हो सकता है वैसे इंसानों में भी हो सकता है, and that is why if we smoke
our respiratory and digestive tract. This comes in contact with the chemicals of the smoke, as a result leading to cancer. वहां पे बाहर से हम केमिकल डालते हैं, यहाँ से भी हम बाहर से स्मोकिंग के केमिकल्स डाल रहे हैं, टोबैको डाल रहे हैं, ये सब अल्कोहल डाल रहे हैं, एक्सेट्रा. And when induced in plants to gain more fleshy fruits, vegetables, etc., these induce nothing but carcinogenesis. This concept of carcinogenesis. And definitely these chemicals don't vanish, as I already told you, and they may definitely harm us. Now it's up to us whether we want to have a choiceless end or endless choice. Means what? Choiceless end means what? If we keep on consuming such kinds of fruits, such kinds of addictions, if they contain and pertain and prevail, what will happen? We have no other end. We have no choice. That is choiceless end. And what is a choiceless end? आदमी थक थक के परेशान होके मतलब इतना तड़फ के he gets death. He is begging for death, but he doesn't get death. Why? Because it's a choiceless end. And endless choice क्या है? आप शुद्ध खाओ, de-addicted रहो, अच्छे से अच्छे आदतें रखो, and you have many choices. I mean, endless choice to eat anything, to exercise or have good habits, and that gives you a healthy life. That is endless choice. The next concept is volumes have been written about cancer, and it's very difficult to concise it in a small presentation of 45 minutes or 50 minutes. But जो हमारे काम का है, जो लोगों के काम का है, जो हमारे अवेयरनेस का मेन फंडा है, उस बारे में हम कुछ कैंसर्स के बारे में और उनके एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे. उसमें कॉमन कैंसर्स हमारे आते हैं. कैंसर्स इन मेन, वो आप देख सकते हो, ओरल कैविटी, तंबाकू खा के इतना सारा पान पट्टी है कि ओरल कैविटी का हमने डंका बजाया दुनिया में कैंसर का. उसके बाद सिगरेट, बीड़ी गांव गांव में सब जगह मिलेगा. लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन बीड़ी फूकने के लिए पैसा है. कोलोरेक्टल कैंसर, नॉनवेज खा खा के, गलत आदतें कर करके. यूरिनरी ब्लैडर, ये यूजुअली ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर है, इसका हम आगे डिस्कस कर रहे हैं, रबर फैक्ट्री है वगैरह एक्सेट्रा. लिम्फोमा, लिम्फेटिक सिस्टम से रिलेटेड. अच्छा, ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर इक्वल रेट में चल रहे हैं, लेकिन अभी ब्रेस्ट कैंसर थोड़ा सा आगे है. लंग कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर, एंडोमेट्रियल विच इज द इनर लाइनिंग ऑफ द यूटरस, और लिम्फोमा. नाउ ये अभी रिसेंटली 2-3 महीने पहले एक WHO का स्टेटमेंट आया था कि अभी तक दुनिया में सबसे ज्यादा कॉमन कैंसर लंग कैंसर था, लेकिन ये 2-3 महीने पहले उनका स्टेटमेंट ऐसा आया कि दुनिया के सारे कैंसर्स में सबसे ज्यादा कोई कैंसर अगर है और वो है ब्रेस्ट कैंसर. मेन विमेन मिला के सबसे ज्यादा हाईएस्ट कैंसर कौन सा है? तो ब्रेस्ट कैंसर. इसका मतलब मेल में ब्रेस्ट कैंसर होता है ऐसा नहीं, वुमेन में जो ब्रेस्ट कैंसर का नंबर है वो बहुत ज्यादा है. एंड दैट इज व्हाई this breast cancer is the highest or the most common cancer that we are seeing currently. अच्छा, नेक्स्ट अभी हम आगे जाते हैं कि कॉमन सिम्टम्स या प्रेजेंटेशंस क्या है. यूजुअली ये जो लास्ट का पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या? अदर रिस्पेक्टिव जो सिम्टम्स हैं वो हमको देखने के लिए मिलते हैं, वो सिस्टम के. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को टंग का कैंसर है, ये इसके दांत है, और उसको अगर ओरल कैविटी का कैंसर है, तो क्या हो जाएगा? उसको मुंह खोलने के लिए नहीं आएगा. उसको अगर आपको एक बार में पानी पूरी खिलाना है या गुलाब जामुन खाना है तो वो नहीं खा सकता है. ठीक है. उसके बाद में आप देखेंगे ये इसके ऊपर छाले हो जाते हैं, रेड एंड व्हाइट पैचेस. ओके, देन देयर इज स्वेलिंग एक्सेट्रा. अगर लंग का कैंसर है तो लंग में मास हो जाएगा, ब्रेथलेसनेस आएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. एलिमेंट्री कैनाल में है या एब्डोमिनल कैविटी में है, तो वो रिस्पेक्टिव सिस्टम के या ऑर्गन के सिम्टम्स हमको देखने के लिए मिलते हैं. लेकिन कॉमन कुछ सिम्टम्स हैं विच कैन बी प्रेजेंटिंग सिम्टम्स ऑफ कैंसर एंड विच कैन बी वन ऑफ, मतलब वो सिम्टम्स रहने की वजह से कैंसर कुड बिकम वन ऑफ योर डिफरेंशियल डायग्नोसिस, एंड दैट इज अनएक्सप्लेन्ड फीवर. मतलब मार्केट में, लेबोरेटरी में जितना फीवर के कॉजेस को मालूम करने के जो भी सारे टेक्निक्स है, टेस्ट है, वो सब लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन करने के बावजूद अगर हमको पता नहीं चलता है कि फीवर किस वजह से, डेफिनेटली वी कैन थिंक फॉर फीवर ड्यू टू कैंसर. अभी कैकेक्सिया और लॉस ऑफ वेट, ये दोनों भाई है. क्या होता है? पेशेंट लूजेस एपेटाइट, देयर इज लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब भूख ही नहीं लगती. अभी भूख नहीं लगेगी तो क्या हो जाएगा? पेशेंट को भूख नहीं लगेगी तो क्या हो जाएगा? उसका वजन कम होएगा ड्रास्टिकली.
तो सडनली 1 महीने में 8-10 किलो वजन कम होता है, 15 किलो वजन कम होता है, फॉर नो रीजन, विदाउट जिमिंग, विदाउट डाइटिंग, उसका इतना सारा वजन कम हो जाता है और उसकी वजह से उसको वीकनेस होता है। और क्या होता है, इतना वजन कम हो जाएगा अगर वो खाना नहीं खाएगा, तो बॉडी को चलाने के लिए बॉडी यूजेस द प्रोटीन फ्रॉम द मसल्स एंड दैट लीड्स टू मसल वेस्टिंग एंड वीकनेस. That is nothing but cachexia, and that makes a patient very debilitated when it comes to cancer. Next slide is about some details about the common cancer. As we already discussed about this lung cancer. So in this lung cancer, you can see that it is the most common cancer in the men, right? And most common cancer in the men because smoking is one of the most important risk factor, passive smoking again, and this is seen commonly in men. Nowadays females also smoke, but still, now at the molecular level this mutation is happening in the genes TP53, that's the regulatory gene, and when it loses control due to mutation, what happens? Cancer of the lung is happening. Now the prognosis is very poor. Why so? देखो ये आपके lungs है, कितना इजी एनाटॉमी का डायग्राम. अभी ये लंग्स में क्या है, सपोज ये लोअर लोब का आपको कैंसर हो गया, तो अभी भाई भाई तो सब जगह होते हैं, तो ये लंग का कैंसर हो गया तो क्या होता है, ये जो दूसरा वाला ये है ना, दूसरा वाला जो लंग है, मतलब ये वाला, ठीक है, ये वाला लंग है, और ये जो दूसरा बचा हुआ जो नॉन कैंसरस लंग है, ये इसके फंक्शन को ओवरकम करने की कोशिश करता है, उसको कॉम्पेंसेट करने की कोशिश करता है. ओके, मेरा भाई है ना, तू लंग तू डैमेज हो गया ना, चल मैं तेरा काम करता हूँ, एक्सेस ब्रीदिंग करता हूँ, एक्सेस एक्सचेंज ऑफ O2 CO2 करूंगा, हाइपोट्रोफी होता है वगैरह वगैरह, एंड दिस हेल्प्स दिस कैंसर टू स्प्रेड एवरीवेयर. एंड दैट इज वाई ये कॉम्पेंसेशन होने की वजह से ये लंग कैंसर या इंटरनल ऑर्गन्स के जो भी कैंसर है उसके पेशेंट जल्दी से प्रेजेंट नहीं करते, हमारे पास जल्दी से प्रेजेंट नहीं करते, इसलिए उनका डायग्नोसिस जल्दी नहीं होता है. उनका डायग्नोसिस जल्दी नहीं होता है, इसलिए उनका प्रोग्नोसिस बहुत बैड होता है. समझ में आया? ये कैंसर का फिक्स रूल है, इफ द पेशेंट इज डिटेक्टेड अर्ली ही कैन बी ट्रीटेड अर्ली, डिटेक्टेड अर्ली ही कैन बी ट्रीटेड अर्ली. ये रामबाण उसका यूनिवर्सल रूल है और इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये जैसे हम, तेरा जर्नल नहीं हुआ ना, मेरा जर्नल होगा, मैं लिखता हूँ, ये ऐसा होता है, और फिर एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछते तो बूम बूम, तो फाइनल टाइम पे जब उसको ब्रीदिंग की जरूरत है तो लंग कैंसर में क्या होता है, वाट लग जाती है. एंड दैट इज वाई द प्रोग्नोसिस इज वेरी वेरी पुअर, एज यू कैन सी, जस्ट 19%, 5 years तक, मतलब 100 लंग कैंसर के पेशेंट हैं तो उसमें से केवल 19 पेशेंट है जो नेक्स्ट 5 years तक जी सकते हैं, बाकी का पहले ही राम नाम सत्य हो गया बिकॉज ऑफ लेट डायग्नोसिस. बट टू इट्स कॉन्ट्रास्ट, इफ यू सी द ओरल कैविटी, द प्रोग्नोसिस कंपैरेटिवली बेटर. इधर पुअर लिखा हुआ है बट इट इज कंपैरेटिवली बेटर एज कंपेयर टू लंग कैंसर. वाई है? क्योंकि मुंह में अगर लीजन्स होते हैं, जलन होता है, इमीडिएटली वो डिटेक्ट हो जाता है. और इसमें हमारे भारत देश ने बहुत बड़ा डंका बजाया है. देखो दुनिया के 1/4 कैंसर ऑफ माउथ, कैंसर ऑफ ओरल कैविटी के केसेस इंडिया के, क्योंकि हर पान पट्टी पे पान पराग, मावा, ये सब, खैनी, तंबाकू, क्या 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 रहते हैं उनके, केसरी, इतने सारे हैं, हमको शायद नाम भी नहीं पता. ये सारे लीगली बिकते हैं. और इसका जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है, हमारे वॉलंटियर ने ऑलरेडी रिसर्च किया है कि पूरे भारत का 2020-21 जब पूरा देश लॉकडाउन में था, पैंडेमिक में था, फिर भी लोगों ने ये तंबाकू खाना कम नहीं किया, सिगरेट पीना नहीं कम किया. और ये सिगरेट और तंबाकू खा करके विदाउट वैट गवर्नमेंट, ऑल ओवर इंडिया गवर्नमेंट को 14 लाख करोड़ का टैक्सेशन का अमाउंट मिला है केवल ये तंबाकू और दारू से. आप सोच सकते हैं, सिगरेट, दारू, तंबाकू, इससे 14 लाख करोड़ का गवर्नमेंट को फायदा हुआ है या उनको टैक्स मिला है. अभी गवर्नमेंट को फायदा है तो गवर्नमेंट को दोष देने में मतलब नहीं. क्यों? क्योंकि खरीदा तो लोगों ने है ना, खरीदा तो लोगों ने, और इसलिए ऐसी सब बात है. खरीदा लोगों ने और ये लोगों का प्रॉब्लम है, और इसलिए लोगों ने सुधरना चाहिए, समझना चाहिए, उनका नुकसान नहीं करना चाहिए. अभी इसके रिस्क फैक्टर देख लो आप, टोबैको च्यूइंग, पान, मावा, गुटखा, खैनी, स्मोकिंग, अल्कोहल, HPV इन्फेक्शन.
और ये मॉलिक्यूलर लेवल पे ये म्यूटेशन हो रहा है, प्रोग्नोसिस कंपेरेटिवली अच्छा है बिकॉज ऑफ अर्ली डिटेक्शन। अच्छा, नेक्स्ट इफ यू सी मोर अबाउट कॉमन कैंसर्स, में ये नेक्स्ट पॉइंट है कैंसर लिवर, कैंसर स्टमक। अभी इसमें एक बहुत कॉमन फैक्टर है, आप देखिए कभी कभी क्या होता है कि वो पार्ट का अगर इन्फेक्शन होना है तो वो पार्ट का इन्फेक्शन डायरेक्टली नहीं होता है, वो क्या करता है कि वो पार्ट का इन्फेक्शन मतलब कैंसर होना है तो डायरेक्टली नहीं होता है, वो पार्ट में पहले इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन होने से वो एरिया की इम्यूनिटी कम हो जाती है, इम्यूनिटी कम होने की वजह से दैट बिकम्स द प्रोन कॉज और द बेसिस फॉर दिस कैंसर। कैंसर स्टमक में देखो मोस्ट ऑफ द टाइम्स एच पाइलोरी एसिडिटी होता है, एच पाइलोरी, फिर उसको पेप्टिक अल्सर्स होता है, और वो अनहीलिंग पेप्टिक अल्सर्स कैन मेनी अ टाइम्स टर्न इनटू कार्सिनोजेनिक लीजन्स। एंड ये एच पाइलोरी के प्रोटीन वोटीन उसमें उसका पैथोजेनेसिस उसमें डिटेल है मॉलिक्यूलर लेवल पे, और ये बाकी सब भी कॉजेस है, ईबीवी, इप्सन बार वायरस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अभी आप देखो ये पुअर प्रोग्नोसिस क्यों है, क्योंकि इंटरनल ऑर्गन है। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ये सपोज आपका ये स्टमक है, स्टमक में इधर कैंसर हो गया, तो ये बाकी का भाग है ना माल भरने के लिए, खाना खाने के लिए, इट विल ट्राई टू कॉम्पेंसेट, एंड एज अ रिजल्ट ये जो कैंसर हो गया है ये बढ़ते जाएगा, स्प्रेड होते जाएगा हिमेटोजेनस रूट से, माने ब्लड के रूट से, लिम्फेटिक रूट से, उसके बाद में फ्रॉम वन ऑर्गन टू अदर, इधर पीछे स्प्लीन है, छोटा कैविटी है, बड़ा कैविटी है, ओमेंटम है, ये सब में स्प्रेड हो सकता है। ग्रेटर ओमेंटम इज द बॉडी गार्ड ऑफ द एलिमेंट्री, ये तुम्हारा एब्डोमिनल कैविटी, बट स्टिल इट फाइट्स, और ऐसी सब बातें हैं। कमिंग टू कैंसर लिवर, इधर उल्टा सीन है, क्या हो रहा है, अल्कोहल कंजम्पशन कर रहा है, अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से सिरोसिस हो रहा है, अल्कोहलिक हिपेटाइटिस हो रहा है, हिपेटाइटिस की वजह से क्या हो रहा है, इन्फेक्शन हो गया, एचबीवी इन्फेक्शन, हिपेटाइटिस मीन्स उसके ए बी सी डी ई ऐसा इन्फेक्शन है, उसमें से एचबीवी इन्फेक्शन होता है, और वो क्या करता है, इट इज डैमेजिंग द TP53 ट्यूमर सप्रेसर जीन बाय दिस अफ्लाटॉक्सिन, बाय दिस एचबीवी इन्फेक्शन, एंड दैट इज व्हाई द कैंसर इज हैपनिंग। ये नंबर्स है, प्रीवेलेंस है, आप देख सकते हैं। ये प्रोग्नोसिस इनका दोनों का कम है, क्यों कम है, बिकॉज लेट डिटेक्शन, क्यों, इंटरनल ऑर्गन्स है, ऐसा है। अभी नेक्स्ट अगर हम देखते हैं मोर अबाउट सम फीमेल कैंसर्स, फीमेल कैंसर देखो कि मोर कॉमन इन इंडिया ब्रेस्ट कैंसर बोला है, अभी तो दुनिया भर में ब्रेस्ट कैंसर कॉमन है, हमने देखा है। देन वेट गेन, ये उसके रिस्क फैक्टर्स क्या क्या देखो, इस वेट गेन, लैक ऑफ एक्सरसाइज, इसका ये मतलब नहीं कि हर जो फीमेल है जिसका अगर ओबेस है वो तो उसको ब्रेस्ट कैंसर होगा, ऐसा नहीं है। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू देयर इज एसोसिएशन, बेसिकली रिस्क फैक्टर्स है। तो नॉट एवरी ओबेस फीमेल विल हैव ब्रेस्ट कैंसर एंड नॉट एवरी लीन एंड थिन फीमेल विल नॉट हैव ब्रेस्ट कैंसर, ऐसा कुछ भी नहीं, बट ये एसोसिएशन है, रिस्क फैक्टर है डेफिनेटली। और ये अल्कोहल कंजम्पशन आजकल फीमेल्स में है, स्मोकिंग देखा जाए, मेन कल्प्रिट ये ओसी पिल्स भी है। अभी ओसी पिल्स क्यों चाहिए, जो लोगों का सेक्सुअल इंटरेक्शन ज्यादा है, जो ये सीए सर्विक्स वाले पॉइंट में नीचे डिस्कस किया है रिस्क फैक्टर्स में, क्या, अर्ली एज ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी, मेनी सेक्सुअल पार्टनर्स यूजुअली हैपनिंग इन दी सेक्स वर्कर्स, मल्टीपल प्रेगनेंसीज, मतलब more and more kids they are having, for that more and more sexual activity is occurring, and this may lead to persistent HPV infection। और जैसा लिवर में हमने HPV इन्फेक्शन देखा, वैसे कैंसर सर्विक्स में HPV इन्फेक्शन है, दैट इज ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, एंड यूज ऑफ ओसी पिल्स। अभी ये वो लोगों को समझ अगर आती है कि ह्यूमन लाइफ इज नॉट फॉर भोग, इट इज फॉर भगवान, then definitely they will not go for repeated sexual activity, and they will understand the purpose of life. They will understand that we are not animals to just eat food and reproduce and enhance our generations. If they understand this, if they leave the materialistic world, they will definitely not use OC pills. And if they don't use OC pills, if they don't go for multiple pregnancies and multiple sexual partners and early age of sexual activity and more sexual interaction, if they don't go for all this, definitely chances of HPV infection will decrease, definitely chances of CA cervix and will decrease. अगर सेक्सुअल एक्टिविटी कम हो गया तो एचपीवी इन्फेक्शन कम हो जाएगा, ओसी पिल्स को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एंड सीए सर्विक्स का
जो चांसेस है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। ये लीडिंग कैंसर इसमें लिखा है, ये पुराना डेटा है, ये रिसेंट डेटा है कि दोनों इक्विवेलेंट है, उसमें भी अभी ब्रेस्ट कैंसर ने डंका बजाया ऑल ओवर वर्ल्ड में। क्यों? बिकॉज द नंबर्स आर मोर। ठीक है, और ये उसका मॉलिक्यूलर लेवल का मैकेनिज्म है, म्यूटेशन है। और ये एचपीवी प्रोटीन, ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के जो प्रोटीन्स हैं वो इटसेल्फ ये ट्यूमर सप्रेसर मतलब ट्यूमर सप्रेसर जीन को टर्न ऑफ करते हैं और कैंसर को प्रोवोक करते हैं। लेकिन उसका प्रोग्नोसिस अगर आप देखते हो तो कंपैरेटिवली दोनों का अच्छा है, 66% और 72.6% एज कंपेयर टू प्रोग्नोसिस ऑफ कैंसर स्टमक, कैंसर लीवर एक्सेट्रा, कैंसर लंग एक्सेट्रा। और वो इसलिए है क्योंकि हमारे पास इनका जल्दी टेस्टिंग होता है। कैसे है? कैंसर ब्रेस्ट की अगर पेशेंट आती है तो शी विल प्रेजेंट लाइक, डॉक्टर मेरे ब्रेस्ट के अंदर चने का जो दाना होता है उतनी गांठ है, नींबू के जितना गांठ है, ग्राउंडनट के इसके जितना गांठ है। सेल्फ पाल्पेटरी मेथड्स है, दे विल असेस every year and they will come, and even if they are having suspicion, immediately mammogram is done and immediately treatment is given, and that is why the prognosis is good. For CA cervix this pap test is available, and that is why pap smear का टेस्ट करने की वजह से easily you come to know it's a routine test, ज्यादा इसमें एडमिट वगैरह होने की जरूरत नहीं है। simply they take the scraping of the cervix and they test it in the pathological laboratory, and as a result there is early detection, and so the prognosis is better. Now in terms of cancer uterus, if you go to the OBGYN OT, you will find so many hysterectomies done, and that is because of leiomyoma, benign tumors or not tumors, benign cancers of the uterus, usually the myoma, ये एंडोमेट्रियल लाइनिंग का या मायोमेट्रियल लाइनिंग का कैंसर हो जाता है, गांठ हो जाती है। पोस्ट मेनोपॉजल, ये इधर लिखा है ना मेनोपॉज, तो मेनोपॉजल फीमेल्स में कॉमन है, ये देखो। और ओबेस, डायबिटीज वाले, हाइपरटेंशन वाले, ये मेनोपॉज, ये मेन है इधर। ठीक है, बहुत सारे मेनोपॉजल, पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स में देखा जाता है। उस और जो लोग हार्ट का ट्रीटमेंट, हार्ट बोले तो अपना हृदय नहीं, ये HAART है, ठीक है ना, रेट्रोवायरल थेरेपी है, वो सब ड्रग लेते तो रिस्क फैक्टर में रहते। दिस इज द मॉलिक्यूलर लेवल हैपनिंग, बट प्रोग्नोसिस इज गुड बिकॉज सर्जरी, रेडिएशन करके, क्योंकि पोस्ट उनका मेनोपॉज अगर हो गया ना तो उसके बाद यू कैन इजीली रिमूव द यूट्रस, देयर इज नो मेन फंक्शन ऑफ द यूट्रस। Even after the reproductive age, uterus can be removed, and that is why if you remove the organ that is the main source of cancer, definitely it will not spread and prognosis will be good, and surgery is one of the treatments of choice here. But sometimes it is fulminant, it is malignant and it spreads. Now one of our maternal grandmother is having this, and she since last 2-3 months, she last 2-3 weeks she's only on normal saline drip and oxygen, because the cancer of the uterus has spread all towards her abdominal cavity, respiratory cavity, and everywhere. It penetrated or entered into the intestine, spleen, pancreas, everywhere, and that is why the prognosis is very bad. So early detection is the key to it. Okay, I'm sorry, ये वापस से स्क्रीन शेयरिंग करता हूँ। So next point was occupational cancers. So if you see these occupational cancers, as I already told you, occupation related hazards are there, and if you see this, see stones in gallbladder and urinary tract can have higher risk of cancers of that respective organ. ये occupational नहीं है, but gallbladder के stones जो patients में, urinary tract, kidney stones जिसको है, they can have, these stones can further create damage, and these organs can have cancers. हील्ड स्कार्स, किलोइड फॉर्मेशन एक्सेट्रा, ट्रॉमा और बर्न की वजह से जो होता है, हायर रिस्क ऑफ कार्सिनोमा, क्योंकि व्हाट इज हैपनिंग व्हेन द स्कार इज हीलिंग, इट मींस व्हाट, द एपिथेलियल लाइनिंग इज रीजनरेटिंग फास्टर एंड फास्टर, एंड ओवरग्रोथ ऑफ दैट कैन कॉज कार्सिनोमा ऑफ द अफेक्टेड स्किन। एस्बेस्टोस में, एस्बेस्टोसिस लंग का होता है, ट्यूमर ऑफ लंग एंड प्लूरा। वर्कर्स एंगेज इन हार्ड वुड कुटिंग, दे कैन हैव पैरानेसल साइनसेस, क्योंकि वो जो लकड़ी का धुआं है या लकड़ी का जो सब है पार्टिकल्स, they can enter into the respiratory tract because of not using the masks during the furniture work. As a result, that can lead to adenoma carcinoma of paranasal sinuses. Then BD factories में increased risk of cancer के upper aerodigestive tract and skin. कैसे होता है? ये लोग मास्क यूज नहीं करते हैं, हैंड ग्लव्स यूज नहीं करते, उसकी वजह से स्किन में से बहुत सारा टोबैको पेनेट्रेट होता है,
when they are making BDs, etc. And what happens in young reproductive females, preeclampsia occurs most of the times in BD workers because of this risk factor. Because the tobacco penetrates the skin and goes into the blood circulation. Similarly, when they are working continuously for 8 hours, 10 hours, 12 hours with those BD without mask, this tobacco slowly during breathing or close contact of this tobacco, it enters through your aerodigestive tract, and that can cause cancers of the respective organs. Workers with glass and rubber industry, we see carcinoma of bladder, as I already told you some time back. So this is how it is, occupational exposure seen. Now if you see this common carcinoma, ये अगर टोबैको लेते ना, देर आर मोर देन 5000 कार्सिनोजेनिक एजेंट्स इन ए सिंगल ये सिगारेट. ये नाम के लिए ये आपको नेट पे मिल जाएंगे ये सब, दिस इज ऑल केमिस्ट्री, बट देर आर मोर देन 5000. नाउ यू विल आस्क, ये एक एक गिन के भरते क्या? नहीं. द मटेरियल दैट इज यूज्ड इट इटसेल्फ एज मॉलिक्यूलर लेवल, इट इज हैविंग सो मेनी कार्सिनोजेंस. इफ यू सी दिस, if I focus this acetone, ammonia, toluidine, urethran, all methanol, pyrene, all these are chemistry wala part. So moral of the story is common carcinogens, these are the most of the carcinogens. Now the next point is that if you see this, just one second, huh? See what is written here, how smoking hurts, how smoking is injurious. सो वो ब्रेन को भी डैमेज करता है, टूथ को भी, मसल्स को भी वीकनेस लाता है, स्कार लंग्स में स्कार कर देता है, आईज का विजन ये ब्लाइंडनेस करता है, रिस्क फॉर ब्लाइंडनेस और मॉडरेट हियरिंग लॉस. स्मोकिंग स्ट्रेसेस योर हार्ट, रिस्क्स योर बोन, ओस्टियोपोरोसिस, हीलिंग टाइम इंक्रीजेस, सो मेनी प्रॉब्लम्स आर देयर नाउ. सो इट डैमेजेस ऑलमोस्ट एवरी ऑर्गन ऑफ योर बॉडी. तो इतना जरूरी क्या है ये नशा करना, स्मोकिंग करना? People have myths in their mind कि स्मोकिंग करने से मेरा पेट साफ होता है. एंड बिग बिग लर्नेड पीपल वो स्क्वायर ऐसा वैसा बड़े बड़े कंपनी का सिगरेट पीते हैं, डिस्पाइट उसके ऊपर लिखा है कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ. दे आर लिटरेट, दे आर एजुकेटेड, दे आर एट बिग पोस्ट. इनफैक्ट सो मेनी मेडिकल स्टूडेंट्स डू इट. Unfortunate that they cannot use their knowledge for this now, even if they are learning. But what is the bad news? Smokers lose 10 years of life expectancy. मतलब if he was supposed to live for 80 years, he will live only for 70 years or less. और जल्दी से डिटेक्ट नहीं होता है, as we already saw in the previous slides. And late डिटेक्ट होता है तो पहले ही राम नाम सत्य हो जाता है उनका मैसिव स्प्रेड होने की वजह से. But what is the good news? If a person quits smoking before the age of 40, he decreases the risk by 90%. Can you see? और 40 इयर्स के बाद में भी अगर आप क्विट करते हो ना, द मोमेंट यू क्विट यू स्टार्ट बेनिफिटिंग बिकॉज यू स्टॉप द फर्दर डैमेज. और इसीलिए हमारा टैगलाइन था स्टार्ट क्विटिंग, स्टार्ट रिपेयरिंग. बराबर है? दिस इज हाउ इट इज. नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट स्लाइड, द नेक्स्ट डिस्कशन is, as I already told you, that cancer is curable if detected early and cancer is preventable if de-addicted early. मतलब अगर आपको जल्दी क्योर करना है, ऐसा अपेक्षा है कैंसर से, तो उसको जल्दी से जल्दी डिटेक्ट, जितना जल्दी डिटेक्ट होगा उतना प्रोग्नोसिस के चांस अच्छे रहेंगे. और इफ यू वांट टू रियली प्रिवेंट कैंसर, द बेस्ट वे इज यू बी डी एडिक्टेड. लेकिन नाउ पीपल विल से कि जो लोग एडिक्शन नहीं करते उन लोग को भी कैंसर होता है, ब्लड कैंसर होता है, बोन कैंसर होता है. फाइनली वी आर नॉट गॉड. what is supposed to happen in our life will definitely happen. We can't work and we can't help much for it, and that is why it is very important that whatever is in our hands we do that. And people say खा पी के मरेंगे, स्मोकिंग करके मरेंगे, एडिक्शन करके मरेंगे. प्रॉब्लम हमको नहीं है, मरना तो सभी को, everyone has to die, death is inevitable, but a happy death is expected. रात को सोया सुबह उठा नहीं, this is the happy death. तड़प तड़प के मर रहा है, आपको 2-2, 4-4, 6-6 महीने हॉस्पिटल में रखा जा रहा है, आप वेंटिलेटर पे सांस ले रहे हैं, आप तड़प तड़प के मर रहे हैं, सलाइन पे जी रहे हैं. दिस काइंड ऑफ डेथ प्रोबेबली नो वन विल विश. और सेवा करने के लिए कोई नहीं आता है. याद रखिए, आपके फैमिली मेंबर्स भी परेशान हो जाते हैं, वो बोलते हैं ये कब मरेगा और कब हमको छुट्टी मिलेगी, बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर सेवा. टॉकिंग अबाउट द सोशल, इकोनॉमिकल एंड स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स, वन साइड वी आर वर्किंग टुवर्ड्स स्मोकलेस कार्स एंड अदर साइड वी सी वी हैव स्मोकिंग ह्यूमंस. स्मोकलेस कार्स क्यों कर रहे हैं? बाहर का धुआं कम करने के लिए. लेकिन स्मोकिंग करके हम अंदर का धुआं बढ़ा रहे हैं. इज इट सेंसिबल? देखो, स्मोकलेस कार बनाने वाले ह्यूमैनिटी के लिए कुछ कंस्ट्रक्टिव कर रहे हैं और स्मोकिंग करने वाले ह्यूमंस
खुद के लिए और सोसाइटी के लिए डिस्ट्रक्टिव काम कर रहे हैं. वी नीड टू अंडरस्टैंड देयर आर बोथ टाइप्स ऑफ पीपल, विच कैटेगरी वी वांट टू बी इन. ये स्मोकिंग के बारे में एक पॉइंट मैं बताना आपको भूल गया कि देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज पैसिव स्मोकिंग और सेकेंड मैन और थर्ड मैन स्मोकिंग. ये सेकेंड मैन स्मोकिंग क्या है, जो मतलब देखो, एक सेकेंड, किधर गया वो, हाँ, सपोज यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, उसके हाथ में वो स्मोकिंग कर रहा है, उसके बाजू में दूसरा आदमी खड़ा है, वो स्मोकिंग नहीं कर रहा है, लेकिन बिकॉज दिस फेलो इज स्मोकिंग, आधा स्मोक इसके अंदर, आधा एटमॉस्फेयर में, एंड द स्मॉल सेम एटमॉस्फेयर का एयर इज बीन ब्रेथ by this person who is not smoking, and this is called as passive or second man smoking, and he is equally exposed to the carcinogens by smoking, and equally he can have the chances of developing. इसीलिए पहला बात है कि खुद को पीना ही नहीं है. दूसरा बात है, कोई पी रहा है तो उसके बाजू में उसको बोलना है भैया आप इधर मत सिगरेट पियो. वो अगर नहीं मानता है तो आप उधर से हट जाओ, ये शाने का काम. सो दिस इज द सिंपल पॉइंट. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज सी दिस एंटीथीसिस. एक तरफ मास्क लगा रहा है कि बाहर के पोल्यूशन से मैं बचूं, दूसरी तरफ सिगरेट पी रहा है, अंदर का पोल्यूशन बढ़ा रहा है. नाउ यू सी दिस इज द सोशल एस्पेक्ट और दिस इज द सोशियोलॉजिकल और माइंड वाला गेम. ये क्या बोलते हैं लोग पता है क्या आपको? अरे बोले मैं सिगरेट पी रहा हूं, मैं तंबाकू खा रहा हूं, इट्स माई चॉइस. बेसिकली इट इज नॉट देयर चॉइस, दे आर फूलिंग देमसेल्व्स. हाउ आई विल टेल यू. जय, ये मेरे पास थाली है और इसमें इतने सारे पकवान है, 10 आइटम है. इसमें से अगर मैं कोई 2 चूज करता हूं खाने के लिए, ये 2 मैंने चूज किए, ये अगर मैं खा रहा हूं, ये 10 आइटम में से मैंने 2 चूज किया, दिस इज माई चॉइस. लेकिन अगर मेरे डिश में अगर ये 2 ही आइटम है, ये 2 ही आइटम है और मेरे को झक मार के यही खाना है, इज इट कॉल्ड एज चॉइस? नो, इट इज कॉल्ड एज चॉइसलेस, राइट? And when you are addicted to eat only these two, that is called as dependency, and that is basically enslavement. कि आप कोई चीज करने के लिए खुद को रोक नहीं सकते. अरे हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने 150 साल तक गुलामी के विरुद्ध लड़ाई करके हमको फिजिकल फ्रीडम हमको उन्होंने दिलाया है. अरे फिजिकल फ्रीडम तो उन्होंने दिला दिया, ये मेंटल फ्रीडम कैसे लोगे आप? हमको एक नॉन लिविंग थिंग, एक निर्जीव चीज हमको अपना गुलाम बना रही है. सोचने वाली बात है कि हम जीवन में क्या करेंगे. अरे सजीव सुपीरियर है क्या निर्जीव? सजीव ऊपर है क्या निर्जीव? सजीव ऊपर है, लेकिन सजीव तो निर्जीव का गुलाम बन रहा है. और इसलिए आप अपने आप को बेवकूफ न बनाए, ये नॉन लिविंग चीजों का गुलाम न बने, और आप सोच लें ये खोटे फ्रीडम के आप अनुभव में रह रहे हैं, जी रहे हैं, और ये आप डिपेंडेंट है, आप गुलामी कर रहे हैं इन चीजों की और अपना खुद का, शरीर का और फाइनेंशियल लॉस कर रहे हैं. बट ये सवाल क्या है कि ये सही है या गलत है, ये सोचते नहीं, बस करना है. इसका कारण ये है, ये क्यों करना है, ये हमारा जब क्लियर नहीं है इसका पर्पस, ये क्यों, क्योंकि हमको जिंदगी में क्या करना है, पर्पस ऑफ लाइफ पता नहीं, इसीलिए हम ये सब बेहुदा चीजें करने में लगे हुए हैं और अपना समय गंवा रहे हैं, हेल्थ डिटोरिएट कर रहे हैं, फाइनेंशियल लॉस कर रहे हैं. तो सोचने वाली बात है, अगर हम इंसान है, सोचने की शक्ति केवल भगवान ने इंसान को दी है. ये देखो खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारता है ना, इतना सब पिएगा तो, खाएगा तो किडनी डैमेज हो जाएगा, क्योंकि किडनी को तो हर चीज को फिल्टर करना पड़ता है, क्योंकि शरीर का फिल्टर कौन है? किडनी है. तो किडनी के ऊपर बहुत सारा लोड आता है. लेकिन ये सब आता कहां से, ये बहुत महत्वपूर्ण है. क्या ये हमको हमारे स्कूल में सिखाते हैं? क्या हमारे एजुकेशन सिस्टम में, क्या हमको घर में सिखाते? नहीं. तो ये कहां से आता है? ये ट्रेंड से आता है. मेरा दोस्त, मेरे पिताजी, मेरे काका, या घर पे परिवार में, रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में. लेकिन सवाल ये है कि इसका पर्पस है, क्या ये वर्थ है? इज इट अ फेयर डील? इज इट रियली नीडेड? क्या ये हमारे लिए ऑक्सीजन के समान है क्या? कि अगर हम, लोग तो सिगरेट पिए बिना सोते नहीं है, लोग तंबाकू खाए बिना उनका दिन की शुरुआत होती नहीं है. क्या इस तंबाकू खाने के लिए हम पैदा हुए हैं क्या? लेकिन इसका कारण मेरे को ऐसा समझ में आता है, जो मैं आपको बतलाता हूं, इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट. हम केवल मुंह से खाते हैं तो हमको ताकत मिलती है, ऐसा नहीं है. हमारे आंखों से जो हम देखते हैं, कानों से जो हम सुनते हैं, जीभ से हम जो बोलते हैं, दिमाग से जो हम सेंस करते हैं,
वो सभी से हमारे अंदर का वातावरण होम्योस्टेसिस उससे उसको फर्क पड़ता है। देखिए ना, जो चीज हम ज्यादा करेंगे वही हमारे अंदर इम्बाइब होगी। अभी 3 घंटे के पिक्चर में शुरुआत के 5 मिनट में राहुल द्रविड़ साहब आके बोलते हैं कि भैया आप तंबाकू मत खाओ, तंबाकू सेहत के लिए हानिकारक है, ऐसा है वैसा है। वो 5 मिनट तो कोई पिक्चर देखने के लिए जाता ही नहीं। हम लोग तो कहाँ जाते हैं, पिक्चर शुरू होने के 15 मिनट बाद में जाते हैं, विलन की एंट्री जब होती है। और 3 घंटा तक वो पिक्चर में क्या देखते हैं कि विलन के हाथ में दारू की बोतल है और उसके हाथ में सिगरेट है। तो मेरे को बोलो, ये 5 मिनट जो हमने देखे नहीं उसका इंपैक्ट रहेगा, या 3 घंटे जो हम विलन को दारू की बोतल और सिगरेट लेके देख रहे हैं उसका इंपैक्ट रहेगा? अरे हम मूवी थिएटर्स को बंद नहीं कर सकते हैं, हम दारू के अड्डों को बंद नहीं कर सकते, हम सिगरेट की दुकानों को बंद नहीं कर सकते, हम तंबाकू की इंडस्ट्री को बंद नहीं कर सकते, लेकिन हमको क्या करना है ये हम चॉइस 100% कर सकते हैं। दुनिया क्या कर रही है उसको छोड़ दो, हमको क्या करना है इसके ऊपर ध्यान दो। लोग बोलते हैं आप सरकार को बोलो, अरे सरकार कोई भी हो, वो सब लोग पैसे के लिए काम करते हैं, देश चलाने के लिए पैसा चाहिए। और 70-60-70% अगर इनका टैक्स का अमाउंट अगर वो लेते हैं, 30-30 40-40% टैक्स अगर लेते हैं, तो सरकार को अगर 1 साल का लॉकडाउन में 14 लाख करोड़ रुपए अगर उनको मिला है, किस चीज से? ये सबके टैक्सेशन से, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। सरकार को अगर इतना पैसा मिल रहा है तो सरकार को तो देश चलाने के लिए पैसा चाहिए, तो फिर वो सबकी बिक्री क्यों रोकेगी? इसलिए ये हमारा काम है, अगर हमको खुद का भला करना है तो हमने क्या करना चाहिए, ये सबको लात मारना चाहिए। मूवी की क्या जरूरत है, सिगरेट की, व्यसन की क्या जरूरत है? जो चीज का पर्पस नहीं है वो चीज को करना नहीं चाहिए। अरे हम अगर हर चीज में सेल्फिश है, तो जब हेल्थ के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, आरोग्य के बारे में बात आती है तो हम सेल्फिश क्यों नहीं है? हम इसके ऊपर खर्चा क्यों नहीं करते? हम इसके बारे में बात क्यों नहीं सोचते? और फिर जब हमको लंबा चौड़ा बिल भरना पड़ता है और तब हमको पश्चाताप होता है, ये तो कोई बात नहीं है। इसलिए आपको ये बात को समझना जरूरी है कि ये सब करने से हम केवल खुद का ही नुकसान कर लेते हैं। अगले स्लाइड में हमारा ये वर्णन है, ये तो मैंने आपको बताया कि ये आता कहां से है, बराबर है, वगैरह वगैरह वगैरह। अब आप देखिए कि ये कैसे हम आरोग्य को स्वस्थ रख सकते हैं। अगर हम पोल्यूटेड एरिया में जाएंगे, या हम पोल्यूशन खुद गाड़ियों से करेंगे, या हमको गलत आदतें, व्यसन अगर होंगे, तो ये हमारा जो लंग है, ये हमारा जो फुफ्फुस है, फेफड़ा है, ये थक जाएगा और ये सैड और अनहेल्दी बन जाएगा, इसको बहुत घात हो जाएगा। लेकिन हम कार्डियक एक्सरसाइज अच्छा करते हैं, 20 मिनट ब्रिस्क वॉकिंग करते हैं, विच इज द बेस्ट एक्सरसाइज। उसके बाद में अगर हम मास्क वगैरह लगाते हैं, अगर ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर है, वर्कआउट करते हैं, थोड़ा प्राणायाम करते हैं, तो हम हमारे लंग को हेल्दी रखेंगे। तो आपल्या सवयी आपले आरोग्य, मतलब क्या? अवर हैबिट्स अवर हेल्थ, अपनी आदतें अपना आरोग्य अपना स्वास्थ्य। और इसलिए ये बात पे हमको ध्यान देना चाहिए, ऐसा मेरे को लगता है। अभी ये बात में आप समझिए कि ये कोविड में वायरस को मारने के लिए शायद हमारे पास रेमडेसिविर इंजेक्शन आ गया, लेकिन वायरस ने जो लंग्स में, हमारे फुफ्फुस में, फेफड़ों में जो घात किया है, जो नुकसान किया है, वो लंग की पावर बढ़ाने के लिए, उसका ऑक्सीजनेशन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए कोई दवाई नहीं है। और उसके लिए हाँ, वो इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए स्टीरॉइड्स वगैरह हम दे सकते हैं, लेकिन जो डैमेज लंग पैरेन्काइमा को हो गया है, उसको अगर हेल्दी करना है, लंग्स को अगर वीक लंग्स को स्ट्रांग बनाना है, तो उसके लिए एकमात्र उपाय हमको देखने को मिला है, वो है प्राणायाम। और इसलिए प्राणायाम करो, स्वस्थ रहो, अच्छी आदतें डालो, वर्कआउट करो, ये सब बातें हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है फाइनेंशियल एस्पेक्ट। अरे लोगों को बोलते हैं ना, तो लोग हमको क्या बोलते हैं पता है क्या? लोग बोलते हैं, मैंने लोगों को बोला था कि आप है ना, ये तंबाकू खा के थूकते हो रोड पे, तो कितना गंदगी होता है। तो मेरे को बोलता है, अगर हम थूकेंगे नहीं तो आपका धंधा चलेगा कैसे? अगर हम तंबाकू खाएंगे नहीं, व्यसन करेंगे नहीं, तो आपका धंधा चलेगा कैसे? पहले तो मैं सोचता रह गया, फिर मैंने उनको बोला, अरे भैया, ऐसी हजारों बीमारियां हैं जो आपके हाथ में नहीं है, और आप वो हजारों बीमारियों को लेके हमारे पास, डॉक्टर के पास आप आओगे, और इसलिए डॉक्टर की तनख्वाह में, इनकम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई डॉक्टर भूखमरी से काम धंधा नहीं है, इसलिए कभी वो कम नहीं पड़ता है, क्योंकि लोग मानते नहीं है, बीमारियां करके लाते हैं लोग, बेसिक पर्सनल हाइजीन की बातें मानते नहीं। सरकार ने, सभी अस्पतालों ने, डॉक्टर ने कितना बोला है, मास्क लगाओ, सैनिटाइजेशन करो, सोशल डिस्टेंसिंग रखो, लोग मानते नहीं, इसीलिए कोविड के केस बढ़े जा रहे हैं।
फिर हम बोलते हैं ये सरकार ने ऐसा किया, वो सरकार ने ऐसे किया, ये ऑफिस ने ऐसा किया। अरे हम अगर खुद का ध्यान रख सकते हैं, हमको क्या करना है, ये भगवान ने सभी को सत सत बुद्धि विवेक दिया है, अगर हम उस पर ध्यान रख सकते हैं तो निश्चित ही हम हमारा बचाव कर सकते हैं। तो इसमें डॉक्टर का कोई नुकसान नहीं है, लेकिन कोई एक कैंसर हो गया तो 10 रुपए की उसको पुड़िया, 40 रुपए का उसको सिगरेट का पैकेट, शायद उसको लाखों रुपए के खर्चे में झोंक सकता है और सारा सारा परिवार उसका कोलैप्स हो सकता है, सोशली, इकोनॉमिकली, मेंटली और इमोशनली, और उनका बहुत नुकसान होता है। दूसरी बात यह है कि लोग बोलते हैं अच्छी चीजें बहुत महंगी होती है, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारा गलत जो है हमारी समझ है। देखिए ना, 1 किलो बादाम का रेट है 900 रुपए किलो और 1 किलो गुटखा का रेट है 4200 रुपए किलो, 4200। 1 किलो काजू 800 रुपए किलो, 1 किलो सिगरेट 5000 रुपए किलो। आप क्या करिए, एक सिगरेट का पैकेट खरीदिए एक्सपेरिमेंट के लिए, उसमें से एक सिगरेट को निकालिए, सुनार की दुकान में जाइए जहां पे वो कम वजन वाली मशीन रहती है ना, जो ग्राम में, मिलीग्राम में गिनती है, उसके ऊपर एक सिगरेट रखिए, उसका कितना वजन है देखिए, और वो सिगरेट के पैकेट के ऊपर जो सेलिंग प्राइस है उसके नंबर ऑफ सिगरेट से डिवाइड करिए, तो आपको एक सिगरेट का रेट मिल जाएगा। अभी उतने वजन की सिगरेट का कितना कीमत है और 1 किलो सिगरेट कितना आएगा, ये 5000 के आसपास आएगा 100%। शुद्ध गाय का घी 500-600 रुपए किलो आता है और तंबाकू 1700 रुपए किलो आता है। सफरचंद माने एप्पल 100 रुपए, 120 रुपए, 150 रुपए किलो है और सुपारी 500 रुपए किलो है। 1 लीटर दूध 50-60 रुपए, 100 रुपए लीटर होगा ज्यादा से ज्यादा बड़े बड़े सिटीज में, शहरों में, लेकिन 1 लीटर देसी दारू 520 है और अगर आप ब्रांडेड लेते हो तो हजारों में जाता है। तो अभी अच्छी चीज की कीमत कम है, बुरे चीजों की कीमत ज्यादा है। फिर भी अगर ये बुरे चीजों से अगर हमको फायदा होता तो हमने सोचना चाहिए कि भाई हम खरीद सकते हैं, लेकिन अच्छी चीजों से हमको फायदा है वो तो हम खरीद नहीं रहे, वो सस्ती है कंपेयर टू, ये 2-2 काजू का पैकेट नहीं बेचते ना 10-10 रुपए में, इसलिए हमको महंगा लगता है। लेकिन ये सब मार्केट का खेल है, हमने समझना चाहिए, और ऐसी सब बातें हैं। अभी कैंसर नहीं होने के लिए 2 चीजें हमने करने जरूरी है। एक का हमने ऑलरेडी चर्चा की है, वो चर्चा है कि डी एडिक्शन। डी एडिक्शन मतलब क्या, व्यसन मुक्ति, व्यसन मुक्ति। और दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है, उपवास, फास्टिंग। आप मानोगे नहीं, दूसरा है, पहला है व्यसन मुक्ति, दूसरा है उपवास युक्ति। उपवास युक्ति, युक्त, उपवास युक्ति। ये कैसे होता है, देखो व्यसन मुक्ति के बारे में तो हमने देखा है। उपवास युक्ति क्या है, देखो 2018 साल में, 2018 साल में जापान के ये 3 साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिकों ने शोध लगाया था कि साल में अगर आप 20 से ज्यादा बार रेगुलर इंटरवल्स पे अगर आप फास्टिंग माने उपवास करते हो तो आपके शरीर में 90% से कैंसर होने की कोई चांसेस क्या हो जाते, कम हो जाते, घट जाते। आप साल में 20 से ज्यादा बार उपवास करिए रेगुलर इंटरवल्स पे, जैसे कोई लोग हर हफ्ते करते हैं, हर 15 दिन में करते हैं। तो कोई भी सर्वसामान्य व्यक्ति में, जिसको बीमारी है नहीं है, जिसको कोई व्यसन है नहीं, 90% चांस क्या हो जाते, कैंसर के कम हो जाते हैं। अब मेरे को बोलिए, इसमें कोई खर्चा है, खाने का खर्चा है वो भी कम हो गया, ठीक है ना। ये उन्होंने, ये अभी इसका मैकेनिज्म क्या है कि जब हमारे शरीर को भूख लगती है तो हमारे शरीर में हमारे जो बॉडीगार्ड सेल्स है वो WBC है, और ये जो कैंसर वाले सेल्स होते हैं ना, जब शरीर को भूख लगती है उपवास करने की वजह से, ये WBC जाके ये कैंसर वाले सेल को खा लेते हैं। इसको हम फैगोसाइटोसिस बोलते हैं, और ये फैगोसाइटोसिस की वजह से ये कैंसर का सेल ही मर जाएगा, तो कैंसर कहां से होगा। और ये कब हो सकता है, जब बॉडी आपकी फास्टिंग कर रही है 18 आवर्स के लिए। अब प्रॉब्लम क्या है, हमारे यहाँ पे तो फास्टिंग की परिभाषा ही बदली गई। फास्टिंग माने उपवास मतलब क्या, हफ्ते भर में जितना नहीं खाया वो उपवास वाले दिन खाओ। साबूदाना का वड़ा बनाओ, गाजर का हलवा बनाओ, आटे का सीरा बनाओ, आलू का सीरा बनाओ, ये बनाओ, खीर बनाओ, वो बनाओ, भांत भांत के फ्रूट खाओ, ये सब दिन भर चलते रहते। ये फास्टिंग से कुछ नहीं होगा। रात को 8 बजे खाना खाया, दूसरे दिन सुबह 8 AM 8 बजे तक 12 घंटे का आपका फास्टिंग हो गया। बस आपको थोड़ा हल्का फुल्का कुछ खा करके दूध या पानी या नींबू शरबत ऐसा सब
जिसमें नमक नहीं डालना है जो लोग एकादशी करते हैं। और इसके आगे तक आप 6 घंटे और फास्टिंग कर लो दोपहर के 1-2 बजे तक, तो आपका 18 घंटे तक का फास्टिंग हो जाएगा और आपके शरीर में 90% कैंसर होने की संभावना क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और ये फास्टिंग एक बार नहीं करना है, 2 बार हो जाएगा। कैसे? अभी आपने फिर 2 बजे दोपहर में 2 बजे कुछ खाया, 2 बजे खाने के बाद खाया मतलब क्या? फलाहार। उपवास तो सच्ची में तो निर्जला करना चाहिए, निर मतलब बिना, जला मतलब पानी, बिना पानी के। लेकिन हम लोग सब काम धंधा करते हैं दिन भर में इतना सारा, तो वो शायद हमारे लिए संभव नहीं है। तो हमने केवल फलाहार करना चाहिए। फल आहार, फलाहार मतलब फल मतलब फ्रूट, आहार मतलब खाना। तो केवल फलाहार करना चाहिए, उससे भी ये हो सकता है। तो 2 बजे आप केवल फलाहार और दूध पी लो और उससे क्या हो जाएगा? 2-3 बजे आपने खाया, फिर आप रात को हल्का फुल्का अगर कुछ खाना चाहे तो खाएं और डायरेक्टली दूसरे दिन सुबह 8 बजे खाएंगे, तो दोपहर के 2-3 बजे से शाम के 8 बजे तक 6 घंटे हो जाएंगे और ये रात के 8 बजे से दूसरे दिन के सुबह 8 AM तक 12 घंटे, ये 12 और 6 18 घंटे। इस प्रकार से आपका 18-18 घंटे का डबल फास्टिंग होने की वजह से आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ हो जाएगा। अभी ये लोगों को तो 2018 में समझ में आया, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने सनातन परंपरा में हजारों हजारों साल से एकादशी का व्रत कहा है। अभी ये जो एकादशी है, ये साल में 24 बार आती है, जो कि 20 बार से ज्यादा है। और ये हम हमारे शास्त्रों में नहीं मानते, ये हमारी सबसे बड़ी दिक्कत है। हम बोलते हैं वो अनसाइंटिफिक है। अरे हमको साइंटिफिक रीजन खोजना नहीं है, इसका मतलब उसके पीछे कोई तथ्य नहीं है, ऐसा थोड़ी ना है। अभी ये साइंटिस्ट लोगों ने खोज के बताया है ना, तो ये निश्चित ही सही है। हमारी रीति रिवाजे में ये कोई खोट नहीं है, इतने हजारों सालों से अगर चलती आ रही है। अगर कोई खोटी चीज है तो ज्यादा दिन चलती नहीं है। हर जनरेशन ने इसको टेस्ट किया है, हर जनरेशन ने उसको परखा है और फिर ही उसको फॉलो किया है। अभी की जनरेशन उसको आंसर नहीं करती, इसका मतलब वो खोखले हैं, ऐसा नहीं। हमारे ऋषि मुनियों ने जिन्होंने ये सब नियम बनाए हैं, वो झाड़ के नीचे पर्णकुटी में रहते थे, जंगलों में रहते थे, नदी का पानी पीते थे और उधर का फल भाजी खाते थे। वो कोई कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर नहीं थे, कोको कोला या दूसरे ये सब मैगी वैगी, ये इतना करोड़ों रुपए खा करके ये गलत बातें नहीं बतलाते थे। और इसलिए हमको ये समझने की जरूरत है कि ये हमारे ऋषि मुनि, ये सारी परंपरा ये बहुत जबरदस्त रही है और इसीलिए हमने उपवास करना चाहिए। ये तंबाकू के कंजम्पशन से एक आध्यात्मिक स्टोरी है जो कभी और हम कवर कर सकते हैं, जो श्री कृष्ण में बताई गई, जिसका ये तात्पर्य, मॉरल ऑफ द स्टोरी यह है कि तंबाकू खाने से गाय का गौमांस खाने जितना पाप हमको लगता है, इसकी एक आध्यात्मिक पौराणिक कथा है। और ये हमारी 2 पोयम है जो हमने जागरूकता के संदर्भ में, एक हिंदी में बनाई है, एक मराठी में बनाई है, कि जागरूकता अभियान कर हम व्यसन मुक्त राष्ट्र बनाएंगे, भारत माता के सपूतों को सत्प्रेरणा बतलाएंगे। विकल्प रहित संकल्प कर, विकल्प रहित संकल्प कर ज्योत जागरूकता की जलाएंगे, दूषित कर्मों से मुक्त कर युवा को स्वर्णिम भारत बनाएंगे। शास्त्र विहित कर्मों का निषेध कर युवा को प्रेरित कराएंगे, फिर धर्म अनुकूल आचरण से राष्ट्र का गौरव बढ़ाएंगे। इसी समाज के हित को लेकर प्रयत्न की पता लहराएंगे, संपूर्ण राष्ट्र को शास्त्र अनुकूल कर ही यात्रा को विराम लगाएंगे। इस मंतव्य को जानकर अब आप भी योगदान लगाएंगे, व्यसन मुक्त भारत के निर्माण में अपनी प्रतिभा को दिखलाएंगे। इस आशा से इस कविता को अब हम विराम लगाएंगे। अब राष्ट्र के युवा की बागडोर को हम सब मिलकर पार लगाएंगे, हम सब मिलकर पार लगाएंगे, व्यसन मुक्त भारत का निर्माण कर दिखलाएंगे, निर्माण कर दिखलाएंगे। धन्यवाद। मराठी की एक कविता है, शायद ये बहुत ही ज्यादा रोचक है, लेकिन ज्यादा हमारे श्रोताओं को शायद समझ में ना आए, इसलिए मैंने इसको स्क्रीन पे दिखाया। आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लेना। ऐसी सब बात है। और व्यसन मुक्त के इस कार्यक्रम में कैंसर अवेयरनेस कर्करोग जागरूकता अभियान के निमित्त आप सभी व्यसन मुक्त और उपवास युक्त बनेंगे और अपने फायदे को स्वास्थ्य के संदर्भ में, आर्थिक बाजू से, इमोशनल, सोशल, ये सभी प्रकार से अपना फायदा करेंगे, ऐसी आशा है। ये कहकर इस मीटिंग को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।